In this lecture, we are going to solve 18th question of the exercise 3.2. So the question is I plus a is equal to I minus a into cos alpha minus sin alpha cos alpha, and this is the A matrix. So first we need to find out a plus I or I plus a. Addition is commutative. So I is, ये कैसी है मैट्रिक्स, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए होगी जो 2 इंटू 2 की हो. सो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड वी नीड टू ऐड इट. सो इट इज 0 माइनस tan alpha by 2 tan alpha by 2 0. So the values will be 1 plus 0 1, 0 plus minus tan alpha will be minus tan alpha by 2, 0 plus tan alpha by 2, so this will be tan alpha by 2, and 1 plus 0 is 1. This is your LHS. Right hand side is solved. Now move on to the left hand side. So left hand side तो हमने पहले ही सॉल्व कर ली. I am solving now the right hand side. So I am erasing this part and writing the value as a plus I value is, I am erasing this and writing the value. If you want, you can note it down. So the value is 1 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 1. This is the value. I am erasing this part. Okay. So I could use this space because this question is lengthy. So this is your LHS. Now moving on to RHS. RHS we have I minus A. So first of all we need to find out I minus A. So I am solving for I minus A here. I minus A is, so I will be 1 0 0 1 and A is 0 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 0. So when we are subtracting, the values will be 1 minus 0 1, 0 minus, so this will be minus again, so this is 0 minus tan alpha by 2. I hope you are getting it. So this will become into plus, and the other part is 0 minus tan alpha by 2, and the other part is 1 minus 0. So this value will be RHS. आपका क्या हो जाएगा, मतलब I माइनस ए कितना आ जाएगा, I, सो मैं LHS ही लिख देता हूँ. सो RHS is, you know what it is, I minus A into what, cos alpha minus sin alpha cos alpha. So I minus A can be written as, यहाँ से हम लिख देते हैं कितना आएगा, 1 plus tan alpha by 2, minus minus will change into plus, ये कितना हो जाएगा, minus tan alpha by 2, और the other value will be 1 into cos alpha minus sin alpha cos alpha. This is the value. So we need to solve the multiplication, row into column. So row into column, 1 into cos alpha. I am just not writing the elementary steps. I am writing 1 into cos alpha as cos alpha plus tan alpha by 2 into sin alpha. The other term will be 1 into minus sin alpha, so it will be minus sin alpha. The other term will be plus tan alpha by 2 cos alpha. The value, the bracket closes to. Second, this row into this matrix, so it will be minus tan alpha by 2 into cos alpha plus sin alpha. 1 into sin alpha is sin alpha. 1 into sin alpha is sin alpha. The other value is minus into minus tan alpha by 2 into minus sin alpha. So it will be minus alpha get cancelled out. So it will be tan alpha by 2
साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अगर मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो आप कहोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है सर, बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। द क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, बट द प्रॉब्लम इज कि हमें tan अल्फा बाई 2 गिवन है और हमें cos की आइडेंटिटी याद नहीं है, क्योंकि हमें जो 11th में आइडेंटिटी बताई गई थी वो कैसे थी, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब हमें ये आइडेंटिटी याद है, अगर नहीं भी है तो, अगर नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं। अगर आपको याद भी थी तो आपको लग रहा है यहाँ पे तो अल्फा था, तो दिस कैन बी चेंज, द आइडेंटिटी कैन बी चेंज। यहाँ पे एंगल ट्वाइस है तो एंगल यहाँ पे कितना हो गया, हाफ हो गया। तो अगर एंगल अल्फा लूँ मैं यहाँ पे cos अल्फा लूंगा तो एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2x था तो उस तरफ गया तो एंगल कितना हुआ cos के साथ, x। तो अभी यहाँ पे कितना है, अल्फा है तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा -1। और साइन 2x की सबको वो एक आइडेंटिटी याद होगी, क्योंकि हम लोग 11th में यूज़ भी करते हैं। मैथ्स से पहले फिजिक्स में इस आइडेंटिटी का यूज़ आता है। सो दिस आइडेंटिटी इज साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। और 12th में ये आइडेंटिटीज आपके लिए बड़ी काम की। तो यहाँ पे भी अगर मैं साइन अल्फा ले लूँगा तो एंगल यहाँ पे ट्वाइस था तो यहाँ पे हाफ हो गया, तो कितना आएगा 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। सो दिस इज द वैल्यू। अब हम इन्हीं वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, कि पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू को और जो मैंने नीचे लिखी है इस वैल्यू को, इन दोनों को हम साइन और कॉस की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब मैं सब्स्टिट्यूट करके पूरा करूंगा तो ब्लैक बोर्ड बहुत भर जाएगा, तो मैं एक एक वैल्यू को सॉल्व करूंगा। एंड आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, ओके, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट एंड आई एम टेकिंग 1 by 1 वैल्यूज, ओके। मैं ये राइट हैंड साइड में कॉर्नर पे लिख देता हूं, ये जो हमें LHS से मिला था रिजल्ट। तो LHS से जो हमें रिजल्ट मिला था दैट इज 1 minus tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1, ओके। तो मैंने वो राइट कॉर्नर पे लिख दिया है। अब मैं इस पार्ट को इरेज करने वाला हूं, शो दैट वाला क्वेश्चन में, ठीक है, ये भी और एक्चुअली में ये भी, each and every part of it. If you want to note it down, pause the video to note it down, okay. So from here I am solving for A11. A11 is, the value is cos alpha plus tan alpha by 2 sin alpha। हमें आइडेंटिटीज तो हमने लिखी ली, हमें कौन सी यूज करनी चाहिए, तो द आइडेंटिटीज कैन बी 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 minus 1 plus tan alpha by 2 sin alpha can be written as 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2, getting it? So this value will be what, this value मैं थोड़ा सा इधर आ गया हूँ, तो this value is 2 cos square alpha by 2 minus 1 and this tan can be written as what, sin अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ये भी हम 10th में देखते हैं, साइन एक्स कैन tan x कैन बी रिटन एज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। अब ये जो कॉस एक्स नीचे था ये और ये कॉस एक्स कट जाएगा, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखूं तो क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, क्योंकि ये साइन अल्फा बाई 2 और ये साइन अल्फा बाई 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूँ तो आपको एक आइडेंटिटी दिखेगी, 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये -1 बाद में, कि इसके बीच में से वैल्यू कॉमन लिया, इन दोनों में से 2 को कॉमन लिया, साइन और प्लस कॉस आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज व्हाट, 1, सो दिस इज 2 minus 2 into 1 minus 1, so this will be 1, getting it, 2 minus 1 is 1। so हमें A11 कितना मिला, 1। I am going to write it down here, okay, मैं स्पेस बना के यहाँ पे लिख देता हूँ, A11 is 1, okay। now if you want to note it down you can pause the video to note it down। now I am solving for A12, the second value,
So A12 is what? Minus sin alpha plus tan alpha by 2 cos alpha. So the value will be minus 2 sin alpha को हम क्या रखेंगे? 2 sin alpha by 2 upon cos alpha by 2 प्लस tan, और ये अपना cos को क्या रखेंगे हम? tan alpha by 2, और cos को क्या रखेंगे? 2 cos स्क्वायर alpha by 2 माइनस 1. तो ये कितना जाएगा? माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस इसका दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? tan अल्फा बाई 2 डॉट 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2. अगर मैं इस वैल्यू को सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दूं तो आपको दिखेगा एस माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और इसको अगर मैं कर दूं चेंज साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2. tan कैन बी चेंज इनटू साइन अपॉन कॉस, सो दिस विल बी 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2. तो कॉस अल्फा कट जाएगा और इसका स्क्वायर कट जाएगा. स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लिकेशन, तो एक टर्म वहां पे कट जाएगा. तो आपके पास क्या बचेगा? अब आप देखो क्या ये दोनों सेम हैं बट साइन अलग है. देखो ये कैसा है? प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2. ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे? कैंसल्ड आउट हो जाएंगे. इन दोनों टर्म्स को कैंसिल आउट हुए तो ये क्या बचेगा? माइनस tan अल्फा बाई 2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A12. तो मैं वो भी लिख देता हूँ. A12 इज माइनस tan अल्फा बाई 2. ओके, चेक भी करते जाना जो हमने पहले सॉल्व किया था क्या ये उसके इक्वल आ रहा है? LHS की जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी, देखो आ रहा है. A11 इज 1, A12 इज माइनस tan अल्फा बाई 2. अब आते हैं थर्ड वैल्यू पे. A21 इज व्हाट? माइनस tan अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा. सेम प्रोसेस चेंज कर देते हैं तो माइनस tan अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा कैन बी रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2. सो द वैल्यू विल बी, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 डॉट 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और माइनस एंड माइनस विल कम प्लस, तो प्लस tan अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2. तो अगर मैं यहाँ पे फिर से वही चेंज कर दूंगा तो माइनस साइन माइनस tan को चेंज करोगे तो क्या आएगा? साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 डॉट 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस tan अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2. ये कॉस और ये स्क्वायर जो है इसका कॉस का वो कट जाएगा. कॉस स्क्वायर था तो कॉस में से एक ही कॉस बचेगा, तो आपके पास क्या बचा? माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2. ये तो कट जाएगा. ठीक है, समझ में आया? ये क्या बचेगा? प्लस tan अल्फा बाई 2 बचा आपके पास और प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 बचे. देखो ये वाला जो टर्म है और जो ये वाला टर्म है, इन दोनों में देखो दोनों टर्म सेम ही है, बस नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, तो दोनों कट जाएंगे और क्या बचेगा? सिर्फ tan अल्फा बाई 2, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा. तो यहाँ पे सिर्फ tan अल्फा बाई 2 बच रहा है. तो A21 इज tan अल्फा बाई 2. गेटिंग इट? सो दिस वैल्यू. अब लास्ट वैल्यू को हमें सॉल्व करना है. नोट करना है तो पॉज कर लेना, ठीक है? नोट A22 निकालते हैं. तो A22 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? tan को पहले इसमें मल्टीप्लाई, तो मतलब साइन अल्फा को हम क्या लिखेंगे? tan अल्फा बाई 2. साइन अल्फा विल बी रिटन एज 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा. दिस इज द सेकेंड वैल्यू विल बी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? tan अल्फा को साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2. 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2. कॉस अल्फा को क्या लिखेंगे? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1.
तो ये कॉस और ये कॉस कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। सो दिस विल बी, यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, सो दिस विल बी 2 into 1 minus 1 which is 2 minus 1 is equal to 1। तो देखो हमारा ये 2:2 भी इसके साथ मैच कर गया, therefore LHS is equal to RHS, hence proved।